And we're very glad ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ پاکستان واپس آ گئی ہیں. You're at the helm of organization like Karandaz. بہت کام ہو رہا ہے لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مائکرو فائنانس از itself not the solution by itself, because پیسہ دینا ہی اینڈ گیم نہیں ہے. جب تک خواتین کی کیپیسٹی بلڈنگ، لیڈرشپ، کانفیڈنس ساتھ نہیں آئے گا تو وہ اس پیسے کو لے کے ویلیو نہیں کریٹ کر سکیں گے. اگر وہ ویلیو نہیں کریٹ کر سکے تو وہ گریجویٹ نہیں کر سکتی ٹو دا نیکسٹ لیول اینڈ دا نیکسٹ لیول. وہ کنزمپشن یا اسی دائرے میں وہ پھنس جائیں گی. سو وہ بہتری ہوگی لیکن وہ والی بہتری نہیں ہوگی جسے ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی فائنینشیل انکلوژن کپلڈ ود کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ سے ایک اور کویشچن کروں گا تھوڑا سا سلائٹلی more on the corporate side, خواتین کو آگے جانا, because you've also gone to the top in very important organizations with very structured process. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ a lot of gender issues are about the unconscious bias. unconscious bias کے تھرو ہمارے first impressions ہوتے ہیں, مرد اس طرح ہے, عورت اس طرح ہے. اس طرح کا مرد جو اس طرح ڈریس اپ ہوگا وہ اس طرح کا ہے, اگر وہ کوئی اور اس طرح ڈریس اپ ہوگی تو اس طرح کی ہے. آدھی مسئلے اور آدھی جو ریسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ انکانشیس بائس کے ہوتے ہیں, اور جو ججمنٹ جسے آپ کہتے ہیں بہت سٹبن ہوتی ہے اور پرسسٹنٹ ہوتی ہے, اس کو چینج نہیں کرتے. ایک USA میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک زمانے میں 1970s میں 5% آرکیسٹرا کے جو پلیئرز تھے وہ خواتین تھیں, 5%. جب انہوں نے ٹیسٹ کے دوران عورت کو ایک اسکرین کے پیچھے رکھ دیا, یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ مرد ہے عورت ہے, تو 50% لائکلیہڈ عورت کے آرکیسٹرا میں بننے کا زیادہ ہو گیا. اور اب ماشاءاللہ سے 33% خواتین جو ہیں وہ آرکیسٹرا کی ممبرز ہیں. ہاں, بہت ڈیورسٹی پہ ٹریننگ ہوتی ہے, بہت لیڈرشپ پہ ڈیولپمنٹ میں ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن اس طرح ڈیورسٹی میں اور خواتین کے اوپر آنا ابھی تک اس طرح نہیں ہوا جتنا بن ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. سو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں انسان پرٹیکولرلی نجنگ میں یا کچھ اور ایریاز میں جو ہمیں کرنا چاہیے ان ٹرمز آف سسٹمز اینڈ پروسیس کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو موقع ملے, نہ صرف موقع ملے بلکہ دے گیٹ پلڈ اپ ٹو دا اپرچونیٹیز دیٹ آر اویلیبل. فرسٹ آف آل ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن میں, کیونکہ ہماری لیول آف لٹریسی بہت لو ہے. جب تک ہم انویسٹ نہیں کریں گے عورتوں میں تب تک ہم وی کانٹ برنگ ان اسکیل اور اے سی چینج. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آبویسلی جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کی عورتوں نے پہلے ترقی کی ہے, پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل لیڈر سے بات کر لیں. میں G20 جو 20 ممالک ہیں ان کا بہت بڑے گروپ میں کام کرتی تھی تقریباً 5 سال ایز اے شرپا آف دا یونائٹڈ نیشنز. ہر لیڈر نے ایگری کیا کہ ہمیں اپنی عورتوں میں انویسٹ کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں. اس کا اردو میں پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے. افرمیٹیو ایکشن جو آپ کو کانشیسلی لے کے عورتوں کو لفٹ کرنا چاہیے. اب چاہے وہ آپ کوٹا سسٹم سے کریں, کیا آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس عورت کو میں نے رکھنا ہے. تو دنیا بھر میں لیڈرز نے ایگری کیا کہ ہم نے اپنی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ کو انکریز کرنا ہے. یہ پرابلم صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ جاپان میں بھی بڑا پرابلم ہے کہ جاپان میں اور بہت سارے ملکوں میں کیبنٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت لو ہے اس وقت عورتوں کی. تو سب ممالک کے لیڈرز نے یہ ایگری کیا کہ ہمیں لفٹ کرنا ہے اپنی فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن کو. اب اس میں بسائڈس ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کرنے کے بہت ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے. ہمیں عورتوں کو پبلک سیکٹر میں اسپیس دینا ہے, ان کو امپلائمنٹ دینی ہے, ان کے لیے ہمیں بہت سارے ڈیڈیکیٹڈ پروگرامز کرنے ہیں. پاکستان میں ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا تھا, اب اس گورنمنٹ نے اس کو ایک نام دیا ہے احساس, اور اس کو اسکیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پہلے وہ 5.7 ملین عورتوں کو بینیفیشریز تھیں, ابھی ہمیں
ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिलियन होंगी बेनिफिशरीज़। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बेनिफिशरीज़ हैं इनको हमें मेन बैंकिंग सिस्टम में अल्टीमेटली लाना है ताकि वो सेल्फ एम्पावर हो जाएं। और इसके अलावा हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है औरतों के लिए। देखिए पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशोज़ भी डिसमल्स हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड मोर्टेलिटी पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, बिकॉज़ ये सारे शोबे जो हैं पाकिस्तान की औरतों को सफ़र करना पड़ता है अगर इन एरियाज़ में ना। लास्टली आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की। इस वक्त when I came to Pakistan तो मैंने जो numbers देखे they are pretty dismal। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स या पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में लेवल ऑफ अवेयरनेस है कि हमें औरतों को एम्प्लॉय करना चाहिए, लेकिन आप प्रोपोर्शंस देखें 10% से 13%। आप जब उनसे बात करते हैं कि आपकी कितनी औरतें आपकी बोर्ड में हैं, तो अब अगर क्यूमुलेटिवली पाकिस्तान का आप नंबर देखें ओनली 2% ऑफ द विमेन आर इन द कॉर्पोरेट बोर्ड्स। तो ये बहुत ही लो रेशो है। दूसरे मुल्कों में 25% है, कहीं पे उससे भी हायर है। तो हमें अपने लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है और हमें कंपल्सरी करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ताकि हमारी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आर फोर्स्ड टू चेंज द गेम अल्टीमेटली एंड ब्रिंग वुमेन टू प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कवर किया बहुत इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। मुझसे गलती होगी, मैं किताब ले आया पाकिस्तान, बिकॉज आपको पता है हमारे यहाँ ज़्यादातर पॉलिसी होती है इनिएंडोस पे या इमोशनल स्पीचेस पे, बट एक बहुत अच्छी किताब है आयरिस बोनेट, व्हाट वर्क्स जेंडर इक्वालिटी बाय डिज़ाइन। और ये बहुत पढ़ने के लिए है बिकॉज में काफ़ी डेटा दिया हुआ है कि क्यों ख़वातीन को इंक्लूसिव लाना ना सिर्फ उनके अपने लिए बेहतर है बल्कि माशरे के लिए बेहतर है। ख़वातीन की जो इकॉनमी है वो $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है। द साइज ऑफ द वुमेन कंट्रोल इकॉनमी बिगर देन इंडिया एंड चाइना। और उसके अलावा जो है मोस्ट चाइना में और अदर एरियाज़ में 70% जो है स्पेंड है वो औरतें कंट्रोल करती हैं। सो इट्स नॉट न सिर्फ ये एक जेंडर का एक इशू है बट इकोनॉमिक इशू भी है। विद माई लास्ट थॉट्स आई वुड से कि बहुत आपने बातें टच की। आपने बात टच की ह्यूमन राइट्स की, आपने बात टच की एक्विटी की, आपने बात टच की बैलेंस की। सो विद दैट आई ब्रिंग समथिंग जो कि हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट, और वो है कुरान की एक आयत है वसमा रफ़ा वज़ा अल मीज़ान, कि अल्लाह मियाँ ने हेवन यानी जन्नत और स्काई को खड़ा किया है और इसने दो जगह उनको बैलेंस उनमें क्रिएट किया है। और बैलेंस को ना तोड़ो, ट्रांसग्रेस ना करो, और वेट में एक्विटी डालो और बैलेंस को कम ना करो। सो एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रूल दे दिया है जिसमें एक्विटी भी है, जिसमें ह्यूमन राइट्स भी है, कि जहाँ भी मर्द या औरत के जो हकाइक हैं हक हैं उनको बैलेंस तरीके से आप उनको सॉल्व करें। अगर ख़वातीन एक फैमिली में आगे हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, तो उनको आगे जाना चाहिए। उनको इसलिए नहीं पीछे रुक जाना चाहिए कि मर्द उनके लेवल पे नहीं हैं। और सिमिलरली अगर मर्द आगे हैं तो मर्द को आगे जाना चाहिए। सिस्टम को एक फेयर होना चाहिए, सिस्टम को एक बैलेंस होना चाहिए। आपने जिक्र किया हमारे फैमिली वैल्यूज़ का, रिलीजन का। अगर हमें रिलीजन में इतने ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं कि अगर हम इसको अप्लाई करें तो न सिर्फ एक इंसाफ वाला एक निज़ाम बन सकता है, बल्कि औरतें मर्द सब एक निज़ाम में ज़्यादा अपने आप को बेहतर आगे ले जा सकती हैं और अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज और अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको बिल्कुल पूरा कर सकती हैं। तो इसका आपके साथ मैं बहुत बहुत आपका कोई लास्ट पार्टिंग थॉट्स होंगे जिसके बारे में आप कहना चाहें? देखिए, ये चूँकि इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात है, आई थिंक हमें ये याद रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जो कि यूनिवर्सल इदारा है, हर और 193 countries, 96 countries of the world are members. Pakistan is also a member of United Nations. United Nations has advocated equality of opportunity for all. तो ये एक बंदे की, एक औरत की बात नहीं है। हमें एस्पायर करना चाहिए फॉर फुल इक्वालिटी, विच मीन्स सारी औरतों के लिए हमें एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना है,
चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एजुकेशन सर्विसेज हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो। रिग्रेटेबली मैं आपको ये बताऊं कि हालांकि हमारे मुल्क ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में यूनानिमसली सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किए थे, पाकिस्तान ने भी उन गोल्स को अडॉप्ट किया है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट हैज़ लेजिस्लेटेड कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें अचीव करना है। हमारा मसला ये है कि वी आर कॉट बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। हमने एम्ब्रेस तो कर लिया, हमने तकरीरें भी कर ली हैं, हमने बहुत सारी बातें भी की हैं, लेकिन वी हैव नॉट इन्वेस्टेड in the sustainable development goals. You know कि sustainable development goal number 5 strives for gender parity, which means equal men and equal women, which means diversity and inclusion, which means कि disabled लोगों को भी उतनी accessibility होनी चाहिए जितनी non-disabled लोगों को, and so forth. तो एक गोल नंबर 5 है जो कि पुश करता है फॉर जेंडर पैरिटी। दूसरा जेंडर इक्वालिटी का गोल है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तीसरा सारे जो 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, दे आर पुशिंग फॉर सर्विस इक्वालिटी, चाहे वो एजुकेशन है, फॉर हेल्थ है। आई थिंक वी नीड टू लॉन्च ए मूवमेंट for sustainable development goals implementation in this country, in the private sector, in the civil society. तो मेरी आपको एक ही अपील होगी, my last parting word, कि हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, we beat our past, we beat our present, but future lies in our hands. मैं आपको ये बताऊं कि मैं वापस आके हर कोई मुझसे पूछता है आप क्या करती हैं, आपके पास कोई बड़ा ओहदा है, आप ये करती हैं। I am just trying to take this opportunity of returning to Pakistan to offer my services to civil society, for the people of Pakistan, for companies that are going to change the destiny of poor people. Today in Pakistan, 30% है poverty at $1, और अगर आप उसको डबल कर दें 50% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। तो ये हम सब का काम है कि हम मिल के काम करें टू रिड्यूस पॉवर्टी। बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी यू आर गोइंग टू एड्रेस women's प्रॉब्लम, बिकॉज डिसप्रोपोर्शनेटली औरतें इस पॉवर्टी रैंक्स में ज़्यादा हैं देन मैन। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग द मॉडरेटर। Those inspiring words, people coming back to Pakistan. औरतें पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। 90% जो भी औरत कमाती है वो फैमिली की एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करती है। सो ये एक नेशनल एक एजेंडा होना चाहिए और नेशनल कॉज होनी चाहिए, और आपने सही जिक्र किया एक सोशल मूवमेंट होनी चाहिए इसके ऊपर। डॉक्टर शमशाद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, और आप तमाम नाजरीन का कि आपने आए और इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बने। शुक्रिया बहुत बहुत।